Acts 22 chapter 22 verse से 23 chapter 1 verse to 11 verse, Job 36 chapter 37 chapter 38 chapter 39 chapter। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। एक्ट्स 22 चैप्टर 22 वर्स से पढ़ते हुए जाएंगे। 23 चैप्टर में 1 वर्स से 11 वर्स तक पढ़ेंगे। 22 वर्स से पढ़ते जाएंगे। And they gave him audience unto this word, and then lifted up their voices and said, Away with such a fellow from the earth, for it is not fit that he should live. And as they cried out and cast off their clothes and threw dust into the air, the chief captain commanded him to be brought into the castle, and bade that he should be examined by scourging, that he might know wherefore they cried so against him. And as they bound him with thongs, Paul said unto the centurion that stood by, Is it lawful for you to scourge a man that is a Roman and uncondemned? When the centurion heard that, he went and told the chief captain, saying, Take heed what thou doest, for this man is a Roman. Then the chief captain came and said unto him, Tell me, art thou a Roman? He said, Yea. And the chief captain answered, With a great sum obtained I this freedom. And Paul said, But I was freeborn. Then straightway they departed from him which should have examined him. And the chief captain also was afraid, after he knew that he was a Roman. And because he had bound him on the morrow, because he would have known the certainty wherefore he was accused of the Jews, he loosed him from his bands, and commanded the chief priests and all their council to appear, and brought Paul down and set him before them। Chapter 23 1 verse से 11 verse तक आगे पढ़ेंगे। Paul pleaded his cause, dissension among his accusers. He is again imprisoned. The Jews conspire to kill him, etc. And Paul, earnestly beholding the council, said, Men and brethren, I have lived in all good conscience before God until this day. And the high priest Ananias commanded them that stood by him to smite him on the mouth. Then said Paul unto him, God shall smite thee, thou whited wall. For sittest thou to judge me after the law, and commandest me to be smitten contrary to the law? And they that stood by said, Revilest thou God's high priest? Then said Paul, I wist not, brethren, that he was the high priest, for it is written, Thou shalt not speak evil of the ruler of thy people. But when Paul perceived that the one part were Sadducees and the other Pharisees, he cried out in the council, Men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee, of the hope and resurrection of the dead I am called in question. And when he had so said, there arose a dissension between the Pharisee and the Sadducees, and the multitude was divided. For the Sadducees say that there is no resurrection, neither angel nor spirit, but the Pharisees confess both. And there arose a great cry, and the scribes that were of the Pharisees' part arose and strove, saying, We find no evil in this man, but if a spirit or an angel hath spoken to him, let us not fight against God. And when there arose a great dissension, the chief captain, fearing lest Paul should have been pulled in pieces of
They commanded the soldiers to go down and to take him by force from among them and to bring him into the castle. And the night following, the Lord stood by him and said, Be of good cheer, Paul, for as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome. प्रेरितों के काम 22 अध्याय 22 वचन से 23 अध्याय 1 वचन से 11 वचन तक, और अय्यूब की पुस्तक 36, 37 और 38, 39 अध्याय। हम पहले प्रेरितों के काम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 22 अध्याय 22 वचन से 23 अध्याय में जाएंगे 1 वचन से 11 वचन तक। प्रेरितों के काम 22 अध्याय 22 वचन से, वे इस बात तक उसकी सुनते रहे, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए, उस ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। जब वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे, तो पलटन के सरदार ने कहा, इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मारकर जांचो कि मैं जानूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। जब उन्होंने उसे तस्मों से बांधा तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को और वह भी बिना दोषी ठहराए हुए कोड़े मारो? सूबेदार ने यह सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा, तू यह क्या करता है? यह तो रोमी मनुष्य है। तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ। यह सुनकर पलटन के सरदार ने कहा, मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपये देकर पाया है। पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूँ। तब जो लोग उसे जांचने पर थे, वे तुरंत उसके पास से हट गए। और पलटन का सरदार भी यह जानकर कि यह रोमी है और मैंने उसे बांधा है, डर गया। महासभा के सामने पौलुस 30 वचन से आगे, दूसरे दिन उसने ठीक ठीक जानने की इच्छा से कि यहूदी उस पर क्यों दोष लगाते हैं, उसके बंधन खोल दिए और प्रधान याजकों और सारी महासभा को इकट्ठा होने की आज्ञा दी और पौलुस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। 23 अध्याय 1 वचन से 11 वचन तक पढ़ते जाएंगे। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। इस पर हनन्याह महायाजक ने उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। तब पौलुस ने उससे कहा, हे चुना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। तो व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है, और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा भला कहता है? पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है, अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कहे। तब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल सदुकियों और दूसरा फरीसियों का है, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने यह बात कही तो फरीसियों और सदुकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदुकी तो यह कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है, परंतु फरीसी इन सबको मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा और कुछ शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे उठ खड़े हुए और यह कहकर झगड़ने लगे, हम इस मनुष्य में कोई बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला है तो फिर क्या? जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डाले, पर पलटन को आज्ञा दी कि उतरकर उसको उनके बीच में से ज़बरदस्ती निकाले और गढ़ में ले जाए। उसी रात प्रभु ने उनके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसे तू ने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। Job 36 chapter, 37 chapter, 38 chapter,
39 चैप्टर हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। चैप्टर 36 Elihu shows how God is just in all his ways. The end of God's chastisements, how Job's sins hinder God's blessings, God's works to be magnified. Chapter 36 first verse से पढ़ेंगे। Elihu also proceeded and said, Suffer me a little, and I will shew thee that I have yet to speak on God's behalf. I will fetch my knowledge from afar, and will ascribe righteousness to my Maker. For truly my words shall not be false. He that is perfect in knowledge is with thee. For behold, God is mighty and despiseth not any. He is mighty in strength and wisdom. He preserveth not the life of the wicked, but giveth right to the poor. He withdraweth not his eyes from the righteous, but with kings are they on the throne. Yea, he doeth establish them forever. They are exalted. And if they bound in fetters and be holden in cords of affliction, then he sheweth them their work and their transgressions that they have exceeded. He openeth also their ear to discipline, and commandeth that they return from iniquity. If they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasures. But if they obey not, they shall perish by the sword, and they shall die without knowledge. But the hypocrites in heart heap up wrath, they cry not when he bindeth them. They die in youth, and their life is among the unclean. He delivereth the poor in his affliction, and openeth their ears in oppression. Even so would he have removed thee out of the strait into a broad place, where there is no straightness, and that which should be set on thy table should be full of fatness. But thou hast fulfilled the judgment of the wicked. Judgment and justice take hold on thee. Because there is wrath, beware lest he take thee away with his stroke. Then a great ransom cannot deliver thee. Will he esteem thy riches? No, not gold, nor all the forces of strength. Desire not the night when people are cut off in their place. Take heed, regard not iniquity. For this hast thou chosen rather than affliction. Behold, God exalteth by his power, who teacheth like him, who hath enjoined him his way, or who can say, Thou hast wrought iniquity? Remember that thou magnify his work which men behold. Every man may say it, see it, man may behold it afar off. Behold, God is great, and we know him not, neither can the number of his years be searched out. For he maketh small the drops of water, they pour down rain according to the vapor thereof, which the clouds do drop, distill upon man abundantly. Also can any understand the spreadings of the clouds of or the noise of his tabernacle? Behold, he speaketh his light upon it, and covereth the bottom of the sea. For by them judgeth he the people. He giveth meat in abundance. With clouds he covereth the light, and commandeth it not to shine by the cloud that cometh betwixt. The noise thereof sheweth concerning it, the cattle also concerning the vapor. Chapter 37
God to be feared for his great works. His wisdom is unsearchable in them. First verse say, at this also my heart trembleth and is moved out of his place. Hear attentively the noise of his voice and the sound that goeth out of his mouth. He directeth it under the whole heaven, and his lightning unto the ends of the earth. After it a voice roareth, he thundereth with the voice of his excellency, and he will not stay them when his voice is heard. God thundereth marvelously with his voice, great things doeth he, which we cannot comprehend. For he saith to this snow, be thou on the earth, likewise to the small rain and to the great rain of his strength. He sealeth up the hand of every man, that all men may know his work. Then the beasts go into the dens and remain in their places. Out of the south cometh the whirlwind, and cold out of the north. By the breath of God trust is given, and the breadth of the waters is straitened. Also by watering he wearieth the thick cloud. He scattereth his bright cloud, and it is turned round about by his counsels, that they may do whatsoever he commandeth them upon the face of the world in the earth. He causeth it to come, whether for correction or for his land or for mercy. Hearken unto this, O Job, stand still and consider the wondrous works of God. Dost thou know when God disposed them, and caused the light of his cloud to shine? Dost thou know the balancings of the clouds, the wondrous works of him which is perfect in knowledge? How thy garments are warm, when he quieteth the earth by the south wind. Hast thou with him spread out the sky which is strong, and as a molten looking glass? Teach us what we shall say unto him. For we cannot order our speech by reason of darkness. Shall it be told him that I speak? If a man speak, surely he shall be swallowed up. And now men see not the bright light which is in the clouds, but the wind passeth and cleanseth them. Fair weather cometh out of the north. With God is terrible majesty. Touching the Almighty, we cannot find him out. He is excellent in power and in judgment, and in plenty of justice. He will not afflict. Men do therefore fear him. He respecteth not any that are wise of heart. Chapter 38. God challenges Job to answer. God, by enumerating his mighty works, convinces Job of ignorance and of imbecility. Job 39 chapter. God shews his power of the wild goats and hints of the wild ass, the unicorn, the peacock and ostrich, the horse, the hawk, the eagle. First verse. Knowest thou the time when the wild goats of the rock bring forth, or canst thou mark when the hinds do gall? Canst thou number the months that they fulfill, or knowest thou the time when they bring forth? They bow themselves, they bring forth their young ones, they cast out their sorrows. Their young ones are in good liking, they grow up with corn. They go forth and return not unto them. And hath sent out the wild ass free,
Who hath sent out the wild ass free, or who hath loosed the bands of the wild ass? Whose house I have made the wilderness, and the barren land his dwellings. He scorneth the multitude of the city, neither regardeth he the crying of the driver. The range of the mountains of is his pasture, and he searcheth after every green thing. Will the unicorn be willing to serve thee, or abide by thy crib? Canst thou bind the unicorn with his band in the furrow, or will he harrow the valleys after thee? Wilt thou trust him because his strength is great, or wilt thou leave thy labor to him? Wilt thou believe him that he will bring home thy seed and gather it into thy barn? Gavest thou the goodly wings unto the peacocks, or wings and feathers unto the ostrich, which layeth her eggs in the earth, and warmeth them in dust, and forgetteth that the foot may crush them, or that the wild beast may break them? She is hardened against her young ones, as though they were not hers. Her labor is in vain without fear, because God had deprived her of wisdom, neither hath he imparted to her understanding. What time she lifteth up herself on high, she scorneth the horse and his rider. Hast thou given the horse strength? Hast thou clothed his neck with thunder? Canst thou make him afraid as a grasshopper? The glory of his nostrils is terrible. He paweth in the valley and rejoiceth in his strength. He goeth on to meet the armed men. He mocketh at fear and is not affrighted. Neither turneth he back from the sword. The quiver rattleth against him, the glittering spear and the shield. He swalloweth the ground with fierceness and rage, neither believeth he that it is the sound of the trumpet. He saith among the trumpets, Ha ha, and he smelleth the battle afar off, the thunder of the captains, and the shouting. Doth the hawk fly by thy wisdom, and stretch her wings towards the south? Doth the eagle mount up at thy command, and make her nest on high? She dwelleth and abideth on the rock, upon the crag of the rock, and the strong place. From thence she seeketh the prey, and her eyes behold afar off. Her young ones also suck up blood. Where the slain are, there is she. अय्यूब की पुस्तक 36 अध्याय, 37 अध्याय, 38 अध्याय और 39 अध्याय हम पढ़ेंगे हिंदी बाइबल BSI बाइबल में से। 36 अध्याय पहले वचन से। फिर एलीहू ने यह भी कहा, कुछ ठहरा रहे और मैं तुझको समझाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के पक्ष में मुझे कुछ और भी कहना है। मैं अपने ज्ञान की बात दूर से ले आऊँगा और अपने सृजनहार को धर्मी ठहराऊँगा, क्योंकि निश्चय मेरी बातें झूठी न होगी। वह जो तेरे संग है वह पूरा ज्ञानी है। देख, परमेश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। वह समझने की शक्ति में सामर्थ है। वह दुष्टों को जिलाए नहीं रखता और दीनों को उनका हक देता है। वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है, और वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाए और दुख की रस्सियों से बांधे जाए, तो भी परमेश्वर उन पर उनके काम और उनका यह अपराध प्रकट करता है कि उन्होंने गर्व किया है।
वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर रहे। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। परंतु यदि वे न सुने तो वे तलवार से नष्ट हो जाते हैं और अज्ञानता में मरते हैं। परंतु वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते हैं और जब वह उनको बांधता है तब भी दोहाई नहीं देते, वे जवानी में मर जाते हैं और उनका जीवन लुच्चों के बीच में नष्ट होता है। वह दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है और उपद्रव में उनका कान खोलता है। परंतु वह तुझको भी क्लेश के मुंह में से निकालकर ऐसे चौड़े स्थान में जहाँ सकेती नहीं है पहुँचा देता है और चिकना चिकना भोजन तेरी मेज पर परोसता है। परंतु तूने दुष्टों का सा निर्णय किया है, इसलिए निर्णय और न्याय तुझसे लिपटे रहते हैं। देख, तू क्रोध में भड़क कर ठट्ठा मत कर और न प्रायश्चित को अधिक बड़ा जानकर मार्ग से मुड़। क्या तेरा रोना या तेरा बल तुझे दुख से छुटकारा देगा? उस रात की अभिलाषा न कर जिसमें देश देश के लोग अपने अपने स्थान से मिटाए जाते हैं। चौकस रहे, अनर्थ काम की ओर मत फिर। तूने तो दुख से अधिक इसी को चुन लिया है। देख, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है। उसके समान शिक्षक कौन है? किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है? और कौन उससे कह सकता है तूने अनुचित काम किया है? उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करना स्मरण रख। जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते चले आए हैं, सब मनुष्य उसको ध्यान से देखते आए हैं और मनुष्य उसे दूर दूर से दिखता है। देख, परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है और उसके वर्ष की गिनती अनंत है, क्योंकि वह तो जल की बूंदें ऊपर को खींच लेता है कि कोहरे से मेह होकर टपकती है। वे ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं और मनुष्यों के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। फिर क्या कोई बादलों का फैलना और उसके मंडल में का गरजना समझ सकता है? देख, वह अपने उजियाले को चारों ओर फैलाता है और समुद्र की थाह को ढांपता है, क्योंकि वह देश देश के लोगों का न्याय उन्हीं से करता है और भोजन वस्तुएं बहुतायत से देता है। वह बिजली को अपने हाथों में लेकर उसे आज्ञा देता है कि निशाने पर गिरे। इसकी कड़क उसी का समाचार देती है। पशु भी प्रकट करते हैं कि अंधड़ चढ़ा आता है। 37 अध्याय पहले वचन से। फिर इस बात पर भी मेरा हृदय कांपता है और अपने स्थान से उछल पड़ता है। उसके बोलने का शब्द तो सुनो और उस शब्द को जो उसके मुंह से निकलता है सुनो। वह उसको सारे आकाश के तले और अपने बिजली को पृथ्वी की छोर तक भेजता है। उसके पीछे गरजने का शब्द होता है। वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता है और जब उसका शब्द सुनाई देता है तब बिजली लगातार चमकने लगती है। परमेश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। वह तो हिम से कहता है, पृथ्वी पर गिर, और इसी प्रकार मेह को भी और मूसलाधार वर्षा को भी ऐसी ही आज्ञा देता है। वह सब मनुष्यों के हाथ पर मुहर कर देता है, जिससे उसके बनाए हुए सब मनुष्य उसको पहचाने। तब वन पशु गुफाओं में घुस जाते और अपनी अपनी मांदों में रहते हैं। दक्षिण दिशा से बवंडर और उत्तर दिशा से जाड़ा आता है। परमेश्वर के श्वास की फूंक से बर्फ पड़ती है। तब जलाशयों का पाट जम जाता है। फिर वह घटाओं को भाप से लादता और अपनी बिजली से भरे हुए उजियाले का बादल दूर तक फैलाता है। वे उसकी बुद्धि की युक्ति से इधर उधर फिराए जाते हैं, इसलिए कि जो आज्ञा वह उनको दे उसी को वे बसाई हुई पृथ्वी के ऊपर पूरी करे, चाहे ताड़ना देने के लिए, चाहे अपनी पृथ्वी की भलाई के लिए, या मनुष्यों पर करुणा करने के लिए वह उसे भेजे। हे अय्यूब, इस पर कान लगा और सुन ले, चुपचाप खड़ा रहे
और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार कर। क्या तू जानता है कि परमेश्वर कैसे अपने बादलों को आज्ञा देता और अपने बादल की बिजली को चमकाता है? क्या तू घटाओं का तौलना या सर्वज्ञानी के आश्चर्य कर्म जानता है? जब पृथ्वी पर दक्षिणी हवा के कारण सन्नाटा रहता है, तब तेरे वस्त्र क्यों गर्म हो जाते हैं? फिर क्या तो उसके साथ आकाश मंडल को तान सकता है, जो ढाले हुए दर्पण के तुल्य दृढ़ है? तू हमें यह सिखा कि उससे क्या कहना चाहिए, क्योंकि हम अंधियारे के कारण अपना व्याख्यान ठीक से नहीं कर सकते। क्या उसको बताया जाए कि मैं बोलना चाहता हूँ? क्या कोई अपना सत्यानाश चाहता है? अभी तो आकाशमंडल में का बड़ा प्रकाश देखा नहीं जाता, जब वायु चलकर उसको शुद्ध करती है। उत्तर दिशा से सुनहली ज्योति आती है। परमेश्वर भय योग्य तेज से विभूषित है, सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते। वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। इसी कारण सज्जन उसका भय मानते हैं, और जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है उन पर वह दृष्टि नहीं करता। परमेश्वर का अय्यूब को उत्तर 38 अध्याय पहले वचन से। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई, क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सीमा बांधी और यह कहकर बेंडे और किवाड़े लगा दिए, यहाँ ही तक आ और आगे न बढ़, और तेरी उमंडने वाली लहरें यही थम जाए। क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी और पौ को उसका स्थान जताया है, ताकि वह पृथ्वी की छोर को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाए? वह ऐसा बदलता है जैसा मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है, और सब वस्तुएं मानो वस्त्र पहने हुए दिखाई देती है। दुष्टों से उनका उजियाला रोक लिया जाता है और उनकी बढ़ाई हुई बाह तोड़ी जाती है। क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुंचा है, या गहरे सागर की थाह में कभी चला फिरा है? क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए? क्या तू घोर अंधकार के फाटकों को कभी देखने पाया है? क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी रीति से समझ लिया है? यदि तू यह सब जानता है तो बतला दे। उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है? क्या तू उसे उसकी सीमा तक हटा सकता है और उसके घर की डगर पहचान सकता है? निसंदेह तू यह सब कुछ जानता होगा, क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न हो चुका था और तू बहुत आयु का है। फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा, या कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है, जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है? जिस मार्ग से उजियाला फैलाया जाता है और पुरवाई पृथ्वी पर बहाई जाती है, महावृष्टि के लिए किसने नाला काटा और कड़कने वाली बिजली के लिए मार्ग बनाया है, कि निर्जन देश में और जंगल में जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता मेघ बरसाकर उजाड़ ही उजाड़ देश को सींचे और हरी घास उगाए? क्या मेघ का कोई पिता है, और ओस की बूंदें किसने उत्पन्न की? किसके गर्भ से बर्फ निकला है, और आकाश से गिरे हुए पालों को कौन उत्पन्न करता है? जल पत्थर के समान जम जाता है और गहरे पानी की सतह जम जाती है। क्या तू कचपचिया का गुच्छा गूंथ सकता, या मृगशिरा के बंधन खोल सकता है? क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता, या सप्तर्षि को साथियों समेत लिए चला सकता है? क्या तू आकाशमंडल की विधियाँ जानता और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है?
क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है ताकि बहुत जल बरस कर तुझे छुपा ले? क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वह जाए और तुझसे कहे मैं उपस्थित हूँ? किसने अंतःकरण में बुद्धि उपजाई और मन में समझने की शक्ति किसने दी है? कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता है और कौन आकाश के कुप्पों को उंडेल सकता है? जब धूली जम जाती है और ढेले एक दूसरे से सट जाते हैं, क्या तू सिंहनी के लिए आहेर पकड़ सकता और जवान सिंहों का पेट भर सकता है जब वे मांद में बैठे हो और आड़ में घात लगाए दबक कर बैठे हो? फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है? 39 अध्याय पहले वचन से। क्या तू जानता है कि पहाड़ पर की जंगली बकरियां कब बच्चे देती है, या जब हरिनियां बियाती है तब क्या तू देखता रहता है? क्या तू उनके महीने गिन सकता है? क्या तू उनके बियाने का समय जानता है? जब वे बैठकर अपने बच्चों को जानती और अपनी पीड़ा से छूट जाती है, उनके बच्चे हष्ट पुष्ट होकर मैदान में बढ़ जाते हैं। वे निकल जाते और फिर नहीं लौटते। किसने बनैले गदहे को स्वाधीन करके छोड़ दिया है? किसने उसके बंधन खोले हैं? उसका घर मैंने निर्जल देश को और उसका निवास लोनिया भूमि को ठहराया है। वह नगर के कोलाहल पर हंसता और हाँकने वाले की हाँक सुनता भी नहीं। पहाड़ों पर जो कुछ मिलता है उसे वह चरता और सब भांति की हरियाली ढूंढता फिरता है। क्या जंगली सांड तेरा काम प्रसन्नता से करेगा? क्या वह तेरी चरनी के पास रहेगा? क्या तू जंगली सांड को रस्से से बांधकर रेघारियों में चला सकता है? क्या वह नालों में तेरे पीछे पीछे हेंगा फेरेगा? क्या तो उसके बड़े बल के कारण उस पर भरोसा करेगा? या जो परिश्रम का काम तेरा हो, क्या तो उसे उस पर छोड़ेगा? क्या तू उसका विश्वास करेगा कि वह तेरा अनाज घर ले आए और तेरे खलिहान का अन्न इकट्ठा करे? फिर शतुर मुर्गी अपने पंखों को आनंद से फुलाती है, परंतु क्या ये पंख और पर स्नेह को प्रकट करते हैं? क्योंकि वह तो अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती और धूली में उन्हें गर्म करती है और इसकी सुधि नहीं रखती कि वे पांव से कुचले जाएंगे या कोई वन पशु उनको कुचल डालेगा। वह अपने बच्चों से ऐसी कठोरता करती है कि मानो उसके नहीं है। यद्यपि उसका कष्ट अकारत होता है तो भी वह निश्चिंत रहती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुद्धि रहित बनाया और उसे समझने की शक्ति नहीं दी। जिस समय वह भागने के लिए अपने पंख फैलाती है, तब घोड़े और उसके सवार दोनों को कुछ नहीं समझती है। क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है? क्या तूने उसकी गर्दन में फहराती हुई अयाल जमाई है? क्या उसको टिड्डी के समान उछलने की शक्ति तू देता है? उसके फुंकारने का शब्द डरावना होता है। वह तराई में टाप मारता है और अपने बल से हर्षित रहता है। वह हथियारबंदों का सामना करने को निकल पड़ता है। वह डर की बात पर हंसता और नहीं घबराता और तलवार से पीछे नहीं हटता। तरकश और चमकता हुआ सांग और भाला उस पर खड़खड़ाता है। वह रिस और क्रोध के मारे भूमि को निगलता है। जब नरसिंगे का शब्द सुनाई देता है तब वह रुकता नहीं। जब जब नरसिंगा बजता तब तब वह हिन हिन करता है और लड़ाई और अफसरों की ललकार और जय जयकार को दूर से सूंघ लेता है। क्या तेरे समझाने से बाज उड़ता है और दक्षिण की ओर उड़ने को अपने पंख फैलाता है? क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है? वह चट्टान पर रहता और चट्टान की चोटी और दृढ़ स्थान पर बसेरा करता है। वह अपनी आंखों से दूर तक देखता है, वहाँ से वह अपने अहेर को ताक लेता है। उसके बच्चे भी लहू चूसते हैं और जहाँ घात किए हुए लोग होते वहाँ वह भी होता है।
2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 8 चैप्टर 40 वर्स टू 56 वर्स, जोशुआ 10 चैप्टर, ल्यूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 40 वचन से 56 वचन तक, और यहोशुआ की पुस्तक 10 अध्याय। हम 2 साल के बाइबल रीडिंग 2 इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान को अपने अकेले के व्यक्तिगत समय के अंदर पढ़ना है। और जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम देखेंगे इन वचनों के अंदर से परमेश्वर हमारे जीवन में एक रास्ता ऐसा देखने के लिए देगा जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा था, कभी नहीं समझा था। और हमने वो बातों को लिख लेना है। वचनों के आधार से हमको जो रास्ता दिखाई देगा, परमेश्वर दिखाएगा, उसको हमने नोट्स बनाकर लिख लेना है और उसी के अनुसार हमने अपना जीवन भी चलना है। और ऐसा करते हुए हम चलेंगे तो 2 साल के अंत में परमेश्वर ने दिखाए हुए मार्ग चला हुआ व्यक्ति होकर हम निखर कर आएंगे। और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर अपने राज्य के काम में इस्तेमाल करता है। तो ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। निश्चित हमने इस अनुग्रह का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।